All right, everyone. So we have a full house today on page 3 here at News 9 with me, Sakshi Singh, Victoria. And what are you looking at? A glamorous frame here with extreme talent coming out of it. We have Hiten Kumar, Ritu Kanodia, Janki Bodiwala, of course, very beautiful Mol Khajar here present with us for Vash Level 2. I am so excited for it because I have seen Vash 1. Wow. And it scared the hell out of me, of course. बट हमें पता है ये सब चीज़ें तो सोसाइटी में होती है एंड सम पीपल माइट बिलीव इट, सम माइट वोंट बिलीव इट, but the story itself, it gives you goosebumps. It gives you that clarity that you have to believe in something negative happening in this world, because if there's no negative, there's no positivity, and that's how the balance is created. सर, आप पे मैं पहले आना चाहती हूँ. इतनी सारी फिल्म करने के बाद में what attracted you towards Vash? Why did you say yes to the franchise? I came to industry with having this kind of an ambition about I wanted to do something which is not typical mold में सारे एक्टर करते रहते वैसे करने के लिए. I am basically born and brought up and I did my lots much of theatre in Mumbai. Yes. I entered with this dream, but उसको पहुँचते ये third decade है, 30 साल हो गए. But as an actor, I never wanted to be a hero or wanted to be a superstar into that mold. But destiny made me do that, and he favored me. So, अब एक दौर ऐसा है when I cross my 50, 55, I've decided कि no, वो सारी चीज़ें हो गई है. तो last 5 years are absolutely blessed years for me. Every film is coming with a different characters, which any actor will die for that. So when केडी ने जब मुझे सुनाया हमारे डायरेक्टर ने, और उसी पल ये कहानी बाकी एक्टरों को भी नरेट की गई थी जो उन्होंने हिम्मत नहीं की थी. दो हमारे यहाँ के सीनियर एक्टर्स नहीं, दे वर स्कैर्ड, नहीं इसमें. बट द मोमेंट ही नरेटेड मी दिस सब्जेक्ट एंड आई टुक अ प्रॉमिस कि केडी मेरे बिना होगा नहीं. बोलता आर यू इंटरेस्टेड? तो आई वांट टू डू दिस ओनली. उसके बाद हम कुछ और फिल्मों के लिए भी मिले, बट मेरा हमेशा ये सवाल था व्हाट हैपेंड टू दैट कहानी जो एक बंदा आता है एक फैमिली को. एंड जब मैंने पहला नरेशन सुना था 5 मिनट में उसने कहानी सुनाई थी, और तब से मेरे को ये पता चल गया था कि यस दिस इज द फिल्म विच आई वांट टू डू. और उसके बाद ये बनी, जिस ढंग से बनी, जिस ढंग से नेशनल अवार्ड तक पहुंची, जिस ढंग से सिनेमा देखने के बाद 48 आवर्स मिनिमम लोगों को वो वक्त लगा उस शॉक में से बाहर निकलने में. एंड आज हम लेवल 2 पे बैठे. बिल्कुल. ये तो आपसे मैं थोड़ा गुजराती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहती हूँ. पीपल कॉल इट ढोलीवुड. Yes. Yes. आई थिंक now Dollywood is there. That people are coming to you guys for the stories. People are actually remaking the stories. People are actually recognizing the power and prowess of Gujarati entertainment industry. Having been connected with it for so many years, how do you feel about it? 5th decade going on. Absolutely. 50 years of being an actor. Started as a child actor. Now today, doing as if it's a new birth. The kind of content which is coming up, the kind of cinema which the youngsters have got into, the new generation is so dedicated, so bold, and so strong into putting their energy into things which no one has yet, in Gujarati film industry, gone. Or rather, like he says, not even in Indian cinema, a film or this kind of technique or this kind of film has ever been made in Indian also. So I'm really blessed that I'm still there. I'm really blessed. I used to shoot in 1976 when I started as a child actor. I used to see the kind of cameras which were there, the technicalities which were there, the mind space of the actors was at that time. And now the way things have turned and how we are connected with the whole world. We are going OTT, people say that OTT has content which has never been explored, and OTT is great and this and that, and we get to see the world cinema, Korean cinema, this, that. But here, Gujarat is so small, and in Gujarat, we are coming up with this kind of subject, this kind of performances, this kind of, technicians working hard, my director, writer, Krishndev Yagnik, coming up with this idea. I'm so blessed, I'm so happy Gujarat is here. And one more thing I would like to join is कि उस ज़माने में बहुत खूबसूरत फिल्में बनी है, बट टारगेटेड ऑडियंस जो हमारा था वो अलग था.
वो 85% गुजरात को ट्रैप करना मीन्स कनेक्ट करना चाहता था, जो गांव खेड़े में रहते हैं, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, राइट। उस वक्त भी बहुत खूबसूरत फिल्में हमारे यहाँ पे बनी है, बट हमारे मार्केट से बाहर बिकॉज लैक ऑफ मीडिया अटेंशन वो सारी चीजें नहीं हो पाई उस वक्त। सोशल मीडिया अभी आया है, हमको वी वेंट फ्रॉम दैट कोविड फेज ऑल्सो, जहाँ पर एक लोगों का सिनेमा और एंटरटेनमेंट को परखने का एक नजरिया बदल गया है, राइट। जैसे हम दिल दे चुके सनम के भी कुछ उसमें से आइडियाज जो थे हमारी गुजराती फिल्म्स पे आते थे। विवाह जो सूरज जी ने बनाई वो भी हमारी ऑफिशियल परमिशन के साथ वो बनाई गई थी, हमारी गुजराती फिल्में थे। इनके फादर ने जो फिल्में की थी वो म्यूजिक बहुत सारी जगह पे रिपीट हो चुका है। उपेंद्र भाई वो हो ही रहा था बहुत खूबसूरत, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। 2 साल बहुत खूबसूरत काम करते थे, उसके बाद बिकॉज ऑफ लॉट्स मच ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम अदर थिंग्स एरियाज आल्सो फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड फैसिलिटीज, पिछले 7 साल में जो हुआ है ना, बिकॉज ऑफ न्यू जनरेशन एंटर्ड विथ अ डिफरेंट माइंडसेट, एक्टर्स, राइटर्स, इन्वेस्टर्स, they are having more bigger dream about making their own presence realized. So last 7 years are fantastic for Gujarati cinema. Last 7 years I can give you that statement about के बाकी किसी भी जुबान में जितनी भी फिल्म बनी उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर हुए तो हमारी गुजराती में हुए। बिल्कुल सर। Whether it works, whether it doesn't work, constantly हमारे मेकर्स, हमारी टीम, हमारे सारे टेक्नीशियंस, एक्टर्स, they all are approaching a different cinema, and today we are just enjoying that. And I believe not only national but Gujarati films have now gone international now. Yeah. The acclamation is global at the moment. जी, absolutely. जानकी आपके पास आते हैं फाइनली। एवरीबडी हैव सीन यू इन शैतान, बट शैतान के पहले मैं वश में भी आपको बात करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट सेम रोल इन डिफरेंट लैंग्वेज बट with so much conviction, and I've seen you in multiple films also, before also you have made your mark. But do you think that, you know, this particular film, be it Vash or be it Shaitan, has changed your life? It has changed the career trajectory? डेफिनेटली, क्योंकि उससे पहले शायद आपने मुझे बहुत बबली क्यूट गर्ल के रोल्स में देखा होगा, और जिस दिन मुझे भी ये फिल्म ऑफर हुई थी सबसे पहला सवाल मेरे डायरेक्टर से मैंने यही किया था कि हाउ कैन यू इमेजिन मी इन दिस कैरेक्टर, क्योंकि दिस इज़ हिज विजन, क्योंकि ये इतना क्यूट सा फेस है और जहाँ पे आर्या का जो ग्राफ जाता है वो जिस लेवल पे जाता है जो ग्राफ, मतलब द मोमेंट आई रेड द स्क्रिप्ट मैंने उनसे ये बोला और मैंने उनको थैंक यू कहा कि यार थैंक यू आपने मुझे इस कैरेक्टर में सोचा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी आज तक मुझे सोचा होगा ऐसे किरदार के लिए। तो वो मतलब डेफिनेटली इट चेंज्ड माई लाइफ, चेंज्ड माई करियर और लोगों का नज़रिया बदल दिया। And how was the moment when you received your award from none other than the King Khan? वो मोमेंट आई थिंक वो मेरे साथ एंड तक रहने वाला है, क्योंकि अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, पर उससे बड़ी बात ये हो गई कि किसके हाथों मुझे अवार्ड मिला बिकॉज क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक्चुअली एक्टिंग करियर में सबसे पहला अवार्ड था और वो जिसके हाथों मिला मैं वहीं पर मतलब ढेर हो गई थी कि ये कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये मतलब क्या हो रहा है मेरे आसपास, ये क्या हो गया। तो अभी भी मैं उस मोमेंट को जब भी सोचती हूँ तो थोड़ा हिल जाती हूँ अंदर से कि ज़्यादा नहीं बात करनी उस मोमेंट के बारे में। वो मेरी मोमेंट है, वो मेरे साथ ही रहने वाली है और मैं उसे अपने पास ही रखना चाहती हूँ लाइफ टाइम। सो क्यूट। मैंने देखा कैसे आपने पिन करके इंस्टाग्राम पे टॉप पे रखा हुआ है ना अपना वो वीडियो। इट्स सो स्पेशल मोमेंट, इट्स अ मोमेंट। Monal, I'm so sorry for making you wait. You've been waiting patiently for your turn, I know. No, But I was happily listening. Yeah. आप बिग बॉस तेलुगु का पार्ट रह चुकी है। You've been part of the Telugu film franchise as well, and you're a very prominent face in the Gujarati film industry as well. कोई difference आपने notice किया है दोनों film industries में? Because दोनों language oriented film industries हैं। I would like to add something in that I have worked in Telugu, Tamil, Malayalam, Gujarati, Yes. Marathi, and Hindi. So We have to say anything else. so
which industry I should talk about. So I feel being a part of film industry, every industry has own way of working, and every industry is doing their best to bring out the best stories and all. I'm so grateful the kind of film I have done in the past. It always helped me to become the person who I am, or the kind of actor I am. I like to choose the film or makers which has create impact in the past, and it adds something in my biography, okay, like tomorrow if I'm doing something such a, because film is something, it's going to stay with you forever, even if you are there or not there. So I like to be a part of the cinema which has been like talk about or remember. So gratefully I can say either Telugu, Tamil or Malayalam or Gujarati or Marathi. I have like certain films, like my first film was Surigadu, which was the best spoof movie. That was my debut in Telugu. Tamil, I have done only 2 films, but like Vanuvar and Vallurai. Sorry. The spoof film that you're talking about is Yeah. the same video ना जो सबसे Yeah. ज़्यादा वायरल हुआ है. शायद आपने भी देखा होगा, एक लड़की चिल्ला रही है और Shiva, जोर yeah, से that's चिल्ला रही है, all. सब change हो रहा है. Oh my god. Yeah, so that was my first debut film. So Tamil film I have done 2, but still like, people remember. So that is the thing. If I talk about my Gujarati film, the Reva is the film like where everybody remember the character of Supriya. So I think, and even Kagaz I got like a good appreciation. Oh my god. Wow. Yeah. What a film. So I mean, I don't compare. I feel I'm very grateful to be a part of different industry and this experience, because being an actor, you're constantly getting work in a different industry, surviving more than 10 years as a female face, it's a lot of things. Absolutely. I mean, everybody is not as blessed as who actor are working in the present, because everyone want to make impact on the screen, everybody want to work, but only chosen one get this seat where we are able to share the screen and able to talk about our experience, So I think it is, touch wood, I'm very grateful, I'm very privileged to share the seat with you guys. So yeah. So Hitu now will start calling her Madame. Mademoiselle. Madame Monal. Hiten sir, आप पे वापस आते, because you spoke about how Gujarati films, not only in current era, but they have been chosen in the past as well, but not very consistently. I also want to ask you from your expertise, जो गुजराती या गुजरातियों का एक डिपिक्शन होता है in the mainstream Bollywood, if I would say, how convincing is that for you? I really want to ask you. Do you really agree with the kind of depiction they show about Gujarat or Gujaratis in their films? If we talk about cinema in India, started with Gujaratis. First studio in India happened at Gondal in my Gujarat. First producer, directors in initial era also started with Gujaratis only. Unfortunately for the regional cinema, that never happened. The kind of beautiful work they did for decades and decades, कंसिस्टेंसी हम लैक करते थे. आज भी देखिए आप, जितने भी वहाँ पे प्रेजेंस आप देख रहे हो, तो वी आर हैविंग लॉट्स मेनी पीपल गुजराती हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, राइट. Today me, Hitu or entire industry or entire my new generation people are having one single dream about it कि गुजराती जो मिस कर चुका है उसे हम पाना चाहते हैं. We are absolutely demanding that respect. जो सिंसियरिटी से बहुत ही कम चीज़ों में हमने इतने साल सर्वाइव किया है, अब हमें वो रिकग्निशन चाहिए. वो अब शुरू हुआ है और दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग. I'm telling you, in the front of a camera, this is just a beginning. Next 5 years, 10 years, you will see that every year, 7 साल से हो ही रहा है कि रेवा जिसका रेफरेंस किया वो भी हमारी नेशनल विनर थी, राइट है. और 5 या 6 फिल्में ऐसी हुई हैं अब तक बिफोर वश. इसलिए मेरे उनका भी अचीवमेंट कमाल है, सैल्यूट के लायक ही है, उन्होंने भी कमाल किया है. वश इसके लिए हमें ज़्यादा, मुझे पर्सनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इस साल के अचीवमेंट के लिए लग रहा है कि जो जॉनरे, हितू ने बीच में एक रेफरेंस दिया कि ये पहली बार इंडियन सिनेमा में ये जॉनरे इस प्रकार की फिल्म को बनाने का किसी ने सोचा.
नॉट इन एनी लैंग्वेज. दिस इज नोन एज अ ग्रैंड हाउस सिनेमा, जो सिर्फ जर्मन में होती थी, कुछ सालों तक हुई, उसके बाद 15 साल नहीं बनी, फिर वापस 2-3 फिल्में बनी, बट किसी ने वो यहाँ पे हिम्मत नहीं की थी जो हमारी ज़ुबान में बनी, और पूरे नेशन ने उसको नोटिस किया, नेशनल तक पहुँची. उसके ऊपर से ऑफिशियल राइट्स लेकर इतने बड़े कैनवास पर हिंदी में उसको बनाया गया. और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि हमारी गुजराती एक्ट्रेस, क्या हुआ हमारे इनिशियल फेज़ के अंदर, मी एंड हितू बोथ आर विटनेस, हमारे पास गुजराती एक्ट्रेसेस ही नहीं थी. मैक्सिमम जितनी एक्ट्रेस थी वो परभाषी थी, जिनको हमें डब करके उनके साथ फिल्में बनानी पड़ती थी. आज हमारे पास इतना अच्छा माहौल है कि नई जनरेशन जो आई है, नॉलेज के साथ आई, स्टडीज़ के साथ आई, और वो मैक्सिमम 99% लोग गुजराती ज़ुबान में काम कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें मिल के वो शक्ति के साथ 100% आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम वो क्रेडिट तो पा ही लेंगे जो हम जिससे के लिए हमने शुरू की थी जर्नी. So it started with my wife Munathi Basu. Yes, she was the first person who was a Gujarati and who became a hero. हाँ, उनके पहले के दौर की जितनी भी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस थी, हर एक के साथ वो शॉट के दरमियान उनको वो लैंग्वेज समझाना, और बट दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, 100% दे वर वेरी हार्ड. क्योंकि उस वक्त हमारे गुजरात में कोई फैसिलिटीज नहीं थी. एक छाते पे 48 की गर्मी में हम लोग शूट करते थे, दे नेवर कंप्लेंड इट, जो हमारी गुजराती बच्चियों से नहीं होता था उस जमाने में. बट मोना एंटर्ड, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन लास्ट 30-35 ईयर्स जो मैंने देखे हैं. रागिनी जी थे उनसे पहले वो थिएटर से कनेक्टेड थी. और उसके बाद हमारे यहाँ गुजराती एक्ट्रेसेस वन आफ्टर, और लास्ट 10 साल में तो जो एक्ट्रेसेस हमारे पास आई हैं, जो लड़कियाँ आए हैं, एक्टर्स आए हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड, दे आर हैविंग अ नॉलेज अबाउट करंट सिनेमा, नेशनल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो. सो वी आर हैविंग दैट पावर नाउ. एंड मोनल को तो मैं गुजराती बोलूंगी नहीं, शी इज तो पैन इंडियन. पैन इंडिया. लेकिन आपने डिपिक्शन की जो बात की ना, इट्स एक्चुअली किसी भी, जैसे पहले पारसीज को जिस तरह से डिपिक्ट करते थे बॉलीवुड में, या तो फिर सरदार्स को डिपिक्ट करते थे, बिल्कुल, और exactly. मैं वही stereotypical depiction. लेकिन वो हुआ है टेलीविजन से. अब देखिए, एक जमाने में सरदार और पंजाबियों के लिए एक टिपिकल कैरिकेचर बनाया गया था. टेलीविजन ने बहुत ज्यादा हार्म किया. जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया, जिस पे मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ, कि जो टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हैं वो गुजराती ऐसे नहीं है. ओके. सिनेमा में बहुत कम हुआ है ऐसे. देखिए आप गिन के देखिए, सिनेमा में गुजराती के साथ वो कैरिकेचरनेस हम नहीं लाए हैं, नोइंगली और अननोइंगली, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई गुजराती कनेक्टेड है उसके साथ, जिसको अपना गुजराती होने पे प्राउड है उसका. टेलीविजन में अनफॉर्चुनेटली हो गया कि वो सारे किरदार बहुत सुपरहिट हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन उसने एक इंप्रेशन इसी बना दी कि गुजराती तो ऐसे ही होते हैं. सो दैट इज अ रॉन्ग इल्यूजन हैपेंड फ्रॉम टेलीविजन साइड. एब्सोल्युटली. हितू जी, काफी सारी हेडलाइंस ऐसी बन रही है बिकॉज वी नो दैट शैतान वाज द रीमेक ऑफ वश, so the story was already out there. I also want to understand from you, since the second part is coming here, what impact is it going to create on Shaitan 2? Will it be exactly the same? Because I also saw Ma of Kajol, and I saw how they have connected Shaitan with Ma, like they are sort of creating the universe there. Yeah. So how much of the reflection of Vash 2 is going to be there in Shaitan 2? First of all, thank you very much, Shaitan and the whole team, the producer, the actors, that because of them, Vash got more highlighted pan-India. Everyone was like interested. Okay, fine, Shaitan is made by a Gujarati, a remake of a Gujarati film, Vash. So that gave us a mileage, such a mileage, that the producers were so strong. They were like, okay, fine, हम लोग भी हमारी Vash 2 को हिंदी में बनाएंगे और रखेंगे. तो Vash level 2 is coming in Hindi. And it is all going hand in hand. They all are happy. Like when Vash level 2 release हो रही है, the whole team of Shaitan is also very happy about it. Okay. They are happy about it. Okay. And it's like भाईचारा है. और हम तो वो दो परिवार को साथ में लाते हैं. एक बेटी होती है जो लाती है, तो हमारे पास भी वैसा ही हुआ है. एक बेटी है जो दोनों परिवार को, शैतान को और वश को साथ में ला चुकी है. So we are positive about everything. पहले हमारा वश लेवल 2 आने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा. जानकी यहाँ पे है बीच में, मायके एंड ससुराल के बीच में, तो ये क्वेश्चन मुझे जानकी से भी पूछना पड़ेगा बिकॉज़ यू आर हम गुजराती वाले शायद थोड़े से ज्यादा सैडिस्ट हैं.
बेचारी हमारी आर्या को हम अभी भी सेकंड पार्ट में भी उतना ही टॉर्चर करते जा रहे हैं। अरे सर, जो तो हिंदी poster वालों ने देख के दर्द हो गया मुझे। पहले में उनको पॉजिटिव एंड नोट पे नॉर्मल कर दिया था। हम नहीं चाहते, हम चाहते हमारी बच्ची को हम और थोड़ा सा और ज्यादा पीड़ा दें। अब चाय पत्ती खा चुके हैं आप, थप्पड़ मार चुके हैं अपने आप को. इनफैक्ट आई वाज टोल्ड दैट यू वर given a situation where you were asked to actually pee on the set in front of everyone. नहीं एक्चुअली वो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा गलत तरीके से शायद मैंने कन्वे कर दिया होगा, बट इट वाज नॉट द सिचुएशन. मैंने ये बोलना चाहा था कि अगर इट्स अ प्रिविलेज के बीइंग एन एक्टर ऐसी सिचुएशन में आपको डाला जाता है जो आप रियल लाइफ में शायद नहीं आ पाओगे, बिकॉज दैट वाज सच सिचुएशन कि आप शायद रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस ना कर सको. तो बीइंग एन एक्टर मुझे वो प्रिविलेज मिला था कि मुझे वहाँ पे आई कुड फील कि अगर मैंने ऐसे रियल में किया तो हाउ विल आई फील, मेरे इमोशंस कैसे होंगे और क्या मतलब महसूस कर रही होगी मैं उस वक्त. सो दैट वाज द होल थिंग कि एंड वो थोड़ा अलग तरह से थोड़ा ट्वीक हो गया. But what a sequence, what a scene, and what strength this actress of ours has. She said, yes, I will do it. And the way she did it, like commendable, yeah, commendable. This is what an actor has to be like. And all the scenes were very chilling, particularly when you get, you know, somebody else's control. But the specific chai patti scene, oh my god, it gives chills down my spine. Jo करके, oh my god, that is brilliant. That is literally brilliant. जानकी, how did you prepare yourself for the character? I really want to understand from you, क्योंकि आपने खुद बोला है कि पहले आपने काफी bubbly, sweet लड़की, romantic लड़की के characters आपने निभाए हैं, लेकिन to play this kind of character, what were the preparations that you went I through? think kudos goes to the script writer, our director, जिन्होंने वश लिखी थी. मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे हर बार उसके इमोशंस मुझे इजीली समझ में आ रहे थे. दैट वाज सच अ गुड राइटिंग. और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है नाड़ी दोष में, और मुझे रिद्धि का कैरेक्टर ऐसे समझ में आ गया था क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी थी. उसमें मुझे उसका ग्राफ दिख रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा वो उसके सीन्स में ही दिख रहा है. और सेम फीलिंग मुझे वश में आई कि यार ये धीरे 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 इसका लेवल अपने आप ग्रेजुअली अप हो रहा है. एक्टर को बस जो लिखा है वो पोर्ट्रे करना है. तो मैंने बस वही कोशिश की कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसे बस मैं निभा पाऊँ. और है हमारे डायरेक्टर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें जो चाहिए उन्हें वो चाहिए, भले वो 15 टेक हो या 25 टेक हो, वो आप में से निकलवा के ही रहेंगे. जो उन्होंने मेरे साथ वश में किया, अगर ये नहीं हो रहा होगा वो आके आपको बताएंगे कि देखिए आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो, उसके बाद ये कर दो, हो जाएगा. एंड अगर मैं ये फॉलो करूँगी ना तो वो हो जाता था. सो यू नीड समवन टू पुश यू, विच ही डिड, और उसका रिजल्ट हम सब अभी देख रहे हैं. तो क्रेडिट तो पूरा स्क्रिप्ट को और उनको ही जाता है इसका. बिल्कुल. Monal, I want to have your take on the remakes specifically, because आपने इतनी सारी languages में काम किया हुआ है, and today we are looking at the different language films being picked up by the mainstream Hindi entertainment industry. They are making the stories, they are sort of taking some sort of creative liberty in it also, but are also not casting the real cast of the film. Except for the Janki's case, यहाँ पे जानकी शैतान में थी, लेकिन काफी सारी साउथ की भी फिल्में हैं जिनकी रीमेक हो रही है, लेकिन ओरिजिनल स्टार कास्ट का उससे कुछ लेना देना नहीं होता है. How do you feel about that? What is your opinion about remakes? See, I think it's 100% maker's call. Okay. When I see as a maker point of view, what happened is like, you know, example like we talk about the Vash only. Janki has done amazing job, you know, to find a same kind of character to do that justice. It's kind of like difficult to find if you want to make remake immediately. In that case, there was no replacement for a Janki if they want to make it immediately, and their conviction won't be the same because she has lived that life, so she know how she can bring out the same character. If we don't talk about the particular Shaitan or Vash, we talk about something else. What happened is like regional or any pan India, you see the value of the face, you see the margin of the film you're gonna make it, so you want to see that like recovery perspective is also very very important when it's come to makers, you know. Okay, XYZ actor is a very well known in Kochi, Malayalam, especially Kerala district. We talk about like Kerala, there is certain amazing actor, but are they going to accept it in Hindi if I want to do a remake? See what happened in Hindi cinema,
majorly you see the female subject or female character is being portrayed only by the big actors. Otherwise, there is no newcomer who's leading the film, and even they are trying to do that. That's not necessary to work as a commercially. I have seen recently there's Anupam Kher sir's one of the film came, and that girl was done. I think Titali or something. Tanvi. Very beautiful trailer I have seen. She has done very good job, but it didn't do well on theaters. So what happened as a makers? You are losing money. So I think it's 100% makers' call. They know how to recover. They know where to bet. With Shaitan, I will say Janvi was an asset for them. And Janki was an asset, like literally asset for them. Like nobody can replace her. She has done that great. And of course they have a home production house, so Ajay sir is gonna play, Madhavan sir can play, but finding the right character for the girl was next to impossible. So it's 100% Janki's works. That's what she got the Shaitan. Like she did so amazing in Vash. So yeah. सर एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड विद दृश्यम 3. हमने ये चीज सुना है दैट द ओरिजिनल वर्जन, द साउथ इंडियन वर्जन एंड द हिंदी वर्जन, द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू रिलीज इट टुगेदर सो दैट द स्टोरी इज नॉट रिवील्ड. जो क्लाइमैक्स 2 के साथ में थोड़ा सा हौच पौच हो गया था कि स्टोरी सबको पहले से पता चल गई थी, तो दृश्यम 2 उस वजह से. सो इस तरीके की टेक्निक could the makers with Vash and Shaitan would have adopted? वो काम आता, या आगे आपको लगता है कि this is going to set some sort of precedence for the remakes? अगर second connected होती है तो पॉसिबिलिटी इसलिए मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज शैतान का एंड वाज डिफरेंट, पॉजिटिव एंड था. यहाँ पर एक डार्कनेस के साथ एक अलग फील के साथ उस कैरेक्टर को छोड़ा गया था. तो ये कहानी जो है जहाँ पे रुकी हुई थी उसके 12 साल के बाद सेम सिचुएशन से शुरू हो रही है. तो सही शैतान में शायद उनकी क्रिएटिव टीम कुछ और सोच कर आए हैं, तो शायद ये बन सकता है, लेकिन वो तो वही लोग डिसीजन ले सकते हैं. बट ये दृश्यम की बात की, वो बहुत करेक्ट डिसीजन है. एट द सेम टाइम अगर तो साइमल्टेनियसली सारी चीजें हो तो क्या होता है कि जैसे वी वर रेडी फॉर फर्स्ट पार्ट्स हिंदी वर्जन आल्सो विद द डबिंग एंड ऑल, बट जब आपने वो रिलीज कर दी है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कहीं पे लोगों को पता है कि वो शॉक एलिमेंट नहीं रहता है. एग्जैक्टली. दृश्यम वाज एक अपवाद था उसमें, जो बहुत टाइम से हमने टेलीविजन पे देखी थी, हिंदी वर्जन भी देखा था उसका डब का, फिर भी फर्स्ट पार्ट को बहुत कमाल का रिस्पॉन्स मिला था जी. मेरे ख्याल से शैतान के बारे में 2 या 3 के बारे में तो इस पल हम कुछ नहीं बोल सकते. लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो. बिल्कुल. ये तो जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यू नो सबसे चैलेंजिंग पार्ट इस फिल्म को शूट करने के दौरान क्या रहा. मुझे तो वो जो स्कूल गर्ल्स एक साथ में होती हैं, एक साथ में इकट्ठे, एक साथ में जब सारी की सारी कंट्रोल में आती हैं, I found that in the trailer very very shocking, and मुझे ऐसा लगने वाला है if I watch that in theater and if I am sitting there, it is going to creep me out. मुझे very scary. तो first part में I started as a pilot, happy-go-lucky guy with a very fun-loving family, and what happens to the daughter by an unknown person. Absolutely. वो जिस तरह से torture, he loses his wife, his son, and the daughter whom he loves so much is in this condition. What happens to him in the first part? Now 12 साल वो उस क्या बोलते हैं ट्रॉमा में yes, वो सह चुका है 12 साल तक. वो पूरा गरम जैसे लोहा हो जाता है, उसके बाद जो उसका आकार होता है वो आकार इसमें आपको दिखेगा. वो गरम लोहा है, उसको किस तरह से आप अभी देखोगे. ये seriously it's going to be fun. Like audience is going to see a new Atharv, a new Hitu Kanori. And yes, of course, जैसे कि आपने बोला कि was it tough, वहाँ पर एक आर्या थी, यहाँ पे बहुत यहाँ सारी पे लड़कियाँ 200 आर्या है. मतलब it was I think हितूज परफॉर्मेंस का मैं एज एन एक्टर अगर मैं कहना चाहूँ तो दोनों इसलिए बहुत अलग किरदार है. आप पहले पार्ट के अथर्व की आंखें देखे, आंखें उसकी पर्सनालिटी, उसकी सिचुएशन देखोगे तो बहुत एक लाचारी है उसमें. 12 साल जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस बच्ची की हालत देख 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 के एक इंसान पत्थर बन जाता है. और इसके पोस्टर में भी देखिए जो हम होर्डिंग ओपन कर चुके हैं, जिसमें उनकी आंखें कहती हैं कि ये अथर्व उस अथर्व से कहीं और एक लेवल पे जी रहा है.
वो जो आंखों में जो एक एब्सोल्युटली स्टोननेस है एब्सोल्युटली, एंड ये अनुभव के बाद इस परिस्थिति को वो कैसे डील करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट लेवल 2's मैजिक। वर्स्ट लेवल 2 का सबसे बड़ा मैजिक हमारा, हम सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा है और होने वाला है आपकी नज़रों के सामने, वो है 200 आर्या हैं हमारे पास, और 200 आर्या एक पूरा शहर। पहले में एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी फैमिली थी और एक बच्ची थी हमारे पास। इन द प्रेजेंस ऑफ वन बच्ची ऑल्सो दैट आर्या ऑल्सो, 200 और लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। Exactly. सबसे पहली बात क्यों, बिकॉज प्रताप तो केज में है, उसकी जो सबसे ज़्यादा पावर जो था उसका उसकी ज़ुबान में था, उसका साउंड में था, वो कमांड उसका उसके पास था। वो जब नहीं रहा है तो इस फिल्म का सबसे इंटरेस्ट जो लोगों को बहुत अभी तक होल्ड करके रख रहा है कि वो ये सारी चीज़ें करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है। सो दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड आई फील Hitu Kanodiya's, I know him from last 40 years or 50 years. This is going to be his best performance because you will be compared with the first part also. And it is very easy for an actor to play that second part. You are taking it for granted about, "Kene maine to kar liya." No, this man has not done. This man has done something amazing in this film with his eyes. Oh my God. Right. That's so nice. And last but not the least, I would like the star cast to make an appeal to the people. Why should be watching them? Why should they be watching this particular film? Why should they be tuning in? What is in Vash 2 that they should definitely not miss out on? कभी सोचा नहीं है वैसा है ये इंडियन सिनेमा किस ओर जा रहा है, किस तरह से फिल्म्स, कंटेंट्स, परफॉर्मेंसेस इवॉल्व हो रहे हैं। अगर ये सब देखना चाहते हो तो ज़रूर से वश लेवल 2 देखिए। स्पेशली यंगस्टर्स को कहना चाहूँगी कि हम हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखते हैं, तो एक रीजनल सिनेमा ने कोशिश की है कि हम आपको वैसी एक फ़िल्म दे सके जिस पे आप भी गर्व ले सके कि यार ये हमारे इंडिया की फ़िल्म है। वैसी फ़िल्म बनाने की कोशिश की है हम सब ने। ज़रूर जाके देखिएगा, ट्रेलर नहीं देखा होगा तो इट्स आउट देयर, वश लेवल 2 इन सिनेमास नियर यू। Thank you so much. It's a wrap. Thank you so Sir, much. for no, tuning to we would Page like to hear it from Pratap. इट्स इनकम्प्लीट विदाउट हिम। Sir, ये camera, Has to this end it camera is with all him. yours. पूरे हिंदुस्तान से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपने वश लेवल 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो अभी फटाफट देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद अपने आप को आप नहीं रोक पाओगे। हर एक घर के अंदर एक बेटी है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आपके अंदर का वो फादर क्या करेगा, वो परिवार क्या करेगा, कैसे अपनी बच्ची को बचाएगा। एक कमाल का अनुभव आपके सामने लेकर आए हैं। 100% आप उस फिल्म को देखने के बाद अपने अंदर से उस फिल्म को बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये छोटी सी फिल्म आप तक लेकर आएँ, आप उसे बड़ा बनाओगे, और हमें 100% गारंटी है कि आप उनको उतना प्यार दोगे जितना हम चाहते हैं। Amazing. And now it's a wrap on Page 3 and this edition Vash 2 special.